Same with me, one after the other. Some 2 months just ran. Hmm. I had gone twice, no, for that. I went for that Atirudra Mahayagnyam also. Where was that? Same place, Puttaparthi only. Prayag. Puttaparthi. Okay, okay. Right. I thought Prayagraj. No, that is in highlight now. हाँ, Okay. ओवर no, बस हो गया. Over yesterday. Hmm. Yeah. You have done batch flower, no, Nandini ma'am? Long back. Yeah. Long back. I think twice or thrice I have done, but without using, I have forgotten. That's it. Shweta ma'am has more interest in batch flower. Yes, but वो connection ही नहीं बैठ रहा है. Something is going. Yeah, I time can आएगा आएगा time. बहुत जल्दी आएगा. We'll wait for understand. 5 minutes. वो जब आना होगा ना, Hmm. when destiny wants, then it's going to happen, ma'am. Otherwise नहीं होने वाला. Yeah. You people. It is all about the consciousness. Okay. So we'll see some this also. Let them join. No, थोड़ा उनका doubts भी clear हो जाएगा. Old batch का. हाँ हाँ श्योर मैम. ये तो एक वेबिनार टाइप का है ना? आपकी आवाज एको हो रही है. दो दो है क्या? नहीं, एको हो रही है आवाज. मैम अभी सुन रहे हैं ठीक से? आपको आ रही है नंदिनी मैम? नहीं आ हाँ, आ रही है, आ रही है. नहीं, मुझे नहीं आ रही है बरोबर. उनकी एको हो रही है वॉइस. हाँ, श्वेता जी का थोड़ा एको एको हो रहा है. हम्म. यस. I'll do the chatting. I'll do a chatting. नहीं, कुछ आवाज नहीं आ रही है. क्या बोल रहे हैं? मतलब इट इज नॉट क्लियर एक्चुअली. थोड़ा दूर रखेंगे ना फोन, शायद आएगा. या फिर हेडफोन्स है तो निकालिए. Yes, it's a webinar. We will know about Dr. Batch, what it is, how these remedies work. So I have done 7 batches on batch flower. Teaching 7 batches I have done, already finished. But I am planning to start it very soon because from 3rd, 4th March I am traveling. I will return on 14th. So थोड़ा देखिए, like 15 के बाद I can start. After that I'm free. Accordingly. So you will know about that 1 or 2 like sessions when you see, listen how it works. Okay, you will understand better. It's a long course. Like it will take around 12 to 14 days minimum. 12 to 14 sessions. And after that, practice sessions are also there. Okay, case studies and all. So, chalo, we'll start with invoke Mother Gayatri. Om Bhur Swah तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. Is my screen visible? Yeah. Yes, Shweta ji. So we will meet. Yeah, we will meet Dr. Batch. Okay, he is Dr. Batch who gave us this beautiful therapy or modality, healing modality. And these are not medicines. Okay, these are flower essence. He gave a beautiful bouquet of 38 flowers. So, these flowers work
on our emotions. Because if you have deep emotions, slowly, your body will start showing in the form of physical ailment. Okay. If you have deep rooted emotions, it will slowly start showing on your physical body. Some ailments will be coming, some pain, like knee pain, calf pain, spine pain, cervical, BP, sugar, anything, cancer, very important. Now, cancer root cause is what? Anger. If you have emotion of anger inside you, jealousy, envy, all these, all our six enemies, if you have, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Madha, Matsarya, all these six enemies sitting inside us, they are going to bring some ruin to our life because they are not meant. They are like Ravana sitting inside our body, right? So we have to be mindful that if you have hold on this six enemies, at least minimum 2 to 3, then you will slowly start getting, means you will, your mind will be under so much of control. Like you have control on your emotion. What is that? Anger, greed. Hmm. So many things if you have. If you control two things also, if you control your, desires, what will happen? Less luggage, more comfort. The more desires you have, the more heavy you feel. Means you have worry, you have anger, you have guilt, everything. How it comes? Because you have lots of desires. And one desire will get over, it will overlap with the other. Already, एक एक हमारा इच्छा खत्म होता है, दूसरा पहले रेडी रहता है, मैं आ रहा हूं, अभी मुझे ले लो, अभी मेरा टर्न है. Right? It becomes like we get trapped in the cobweb. So these batch flower remedies, how he brought, how he was a very, practicing doctor himself. He was a doctor, allopathy doctor, Dr. Batch. Then he found, like in his practice of many years, he found, see, only by popping a pill, we just bring little ease to our disease, little ease. But what happens after this tablet that is over, no? Period is over, like 1 day, 2 day, again it will relapse. It will not be removed with root cause. Anything, any disease. 1 or 2 days you will feel better again. So what he said, he thought, chalo, maybe I will, he was a microbiologist. Everything, he had so much of knowledge. So he did a study of homeopathy. So he, in homeopathy also, he did so much research. उन्होंने ना बैच नोसोड्स, वो आज भी यूज होते हैं, बैच नोसोड्स उन्होंने निकाले, और वो नोसोड्स इतना ब्यूटीफुली काम कर रहे थे. एंड होम्योपैथी ऑल्सो ही वॉज फाइंडिंग, यस, बट अगेन सेम आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ प्रैक्टिस ही सेड, व्हाट, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मुझे लोगों के इमोशन पे काम करना है. इफ द इमोशन इज ओवर, मीन्स इमोशन इज हील्ड, automatically you are healed. So only if that emotion is healed, the person will get healed. So what he did, he left, and he was also himself diagnosed with cancer. Doctor told you have 3 months of time to live, but he survived and lived for 20 years. Now we'll see how. So back in between, when he was diagnosed, he did some
himself, he was a doctor, he was a allopathy doctor, he was a homeopathic doctor, but he left every practice and went to wild forest of Arizona in somewhere in England. Okay, he went there. So what he did in the wild forest, he was a microbiologist. So he had knowledge also what plant is, seeing the structure of the plant. He was very intuitive. He had so much good intuition also. So he was just putting that a petal of that flower on his tongue. So he was just ना सोचते थे कि क्या इससे मुझे क्या असर हुआ। और जब वो जंगलों में चलते थे ना, वो थॉर्न्स वो सब उनको हाथों में ऐसे ब्रूसेस आते थे। ब्रूसेस आने से क्या होता था, वो मतलब नेक्स्ट डे क्या करते थे, जब वो जंगल से वापस जाते थे ना, तो वो जो पानी है ना, ओस के मोती, दैट दैट ड्यू ड्रॉप्स, उसके हाथों पे छू लेते थे वो, फॉरेस्ट में चलते चलते। और वो दूसरे पल आके रात को देखते थे या शाम को, अरे वो तो जो कट आया था वो तो गुम हो गया, हील हो गया, कैसे हो गया। तो वो सोचने लगे थे कि मुझे मतलब ऐसे क्या हुआ, ऐसे मुझे पानी ने टच किया। तो उन्होंने वो ध्यान देना शुरू किया कि पानी से मुझे इतना मतलब हीलिंग हो गई, तो ये फ्लावर में उतना हीलिंग पावर है। हाँ, ऐसे धीरे धीरे करके, धीरे धीरे पहले 3 सालों में उन्होंने सिर्फ 12 फ्लावर्स ढूंढे, 12 हीलर्स। 12 फ्लावर्स, 12 हीलर्स को ढूंढा। 12 हीलर्स कौन है, हमारे जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो पर्सनैलिटी टाइप है, जो हमारा नेचर है, वो वो ढूंढा पूरा। उस फिर कुछ सालों तक और प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने ये 7 हेल्पर्स, फिर सेकंड 19, इस तरह से 38 फ्लावर्स उन्होंने एक बुके बना के हमको दिया, जो हमारे इंसान के सिर्फ 38 इमोशंस ही हैं, उससे ज्यादा है ही नहीं। वो 38 इमोशंस पे काम करता है। हर एक फ्लावर की अपनी प्रॉपर्टी है, हर एक उसका एट्रीब्यूट है। लाइक आपको और ये इस तरह से काम नहीं करता है। कोई सपोज 4 लोग आप बैठे हैं, चारों को सपोज एक को हेडेक है, दूसरे को भी हेडेक है, तीसरे को भी, हम क्या करते हैं, एक हेडेक की मेडिसिन एलोपैथी में दे देते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है। हर एक इंसान का बैकग्राउंड डिफरेंट है। जैसे हमारा सोल डिफरेंट है, हमारी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है, वैसे ही इमोशन भी हमारा डिफरेंट है। लाइक एक बोलेगा मुझे एसिडिटी की वजह से हेडेक हुआ है, दूसरा बोलेगा मुझे बहुत गुस्सा आया था तो वो गैस मेरे दिमाग में चढ़ गई है। क्या इमोशन चेंज हुआ। कोई बोलेगा कि मैंने ना किसी को बहुत चिल्लाया है, कोई बोलेगा मैं धूप में गया उसकी वजह से मुझे हो गया। मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो हम लोग सबको एक तरह से ट्रीट नहीं करेंगे, पूछेंगे। कोई बोलेगा किसी ने मुझे ना हर्ट किया था बातों से, तो वो सोच के मेरे हेडेक हो गया मुझे। कुछ भी हो सकता है। एक सिंपल हेडेक हम अलग अलग तरह से क्या करते हैं, वो इंसान का पूरा पूछ लेते हैं, ऐसा क्या हुआ था आपको हेडेक हो गया। तो वो बताएगा कि ये ऐसा हुआ था मुझे, मैंने लेट रात को खाना खाया, एसिडिटी हो गई, एक ऐसे बताएगा। तो हम उस तरह से उसको वो देते हैं रेमेडी। और दूसरा बोलता है कि नहीं, मुझे ना बहुत जोर से गुस्सा आया था, मेरे हिसाब से कोई काम नहीं हुआ था, मेरी चीजों को गड़बड़ करके रख दिया था, मेरी मेड टाइम पे नहीं आई थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ऐसे सब चीजें जब होती है ना, तब मतलब उसका अलग ये होता है, मतलब हम पूरा डायग्नोसिस उसके हिसाब से करते हैं। फिर अगर कोई एक आपको बोलता है कि मुझे किसी ने ना बहुत शब्दों से हर्ट किया, कुछ ऐसी चीज बोल दी, उसकी वजह से मुझे हेडेक हो गया। तो हर एक का रीजन अलग है, बट डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर वो इमोशन पे काम करता है। सबको एक सेम सिमिलर ट्रीटमेंट नहीं जाती। ठीक है।
तो ये बैच फ्लावर की खासियत है कि वो कैसे काम करता है। और ये बनते कैसे, ये देखो, ये फ्लावर इसेंस है। इसको क्या किया जाता है ना, वो जंगलों में जो फ्लावर्स हैं वो कैसे, फ्लावर्स को ना अर्ली मॉर्निंग जाके सिजर से, हाथ भी नहीं लगता है, सिजर से कट होता है, और स्प्रिंग वाटर है ना, झरने का पानी, फ्रेश स्प्रिंग वाटर, उसमें वो फ्लावर्स को सनलाइट के नीचे थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए रखा जाता है। तो जो वाइब्रेशंस फ्लावर में है, जो फ्रीक्वेंसी फ्लावर की जो गुडनेस है, क्योंकि वाटर को मेमोरी हमको पता है, वाटर में हम जो भी डालते हैं वो मेमोरी आ जाती है उसमें। ओके, तो ये वो फ्लावर्स है ना, वो उसका गुडनेस ले लेते हैं, पानी में चला जाता है जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं फ्लावर की, और वो बन जाता है हमारा मदर टिंचर, वो फ्लावर एसेंस। फिर उसको स्टोर करने के लिए दे आर यूजिंग ब्रांडिंग टू स्टोर, लाइक हम अचार में कैसे वी यूज विनीगर और समथिंग, कोई प्रिजर्वेटिव डालते हैं ना, जैसे वो रह जाए थोड़े दिनों के लिए, सेम वे वो डाल के रखते हैं। देखिए आप देखेंगे वाटर हैज मेमोरी, कैसे मेमोरी होता है, आप जो भी पानी को बोलोगे, हम अफर्मेशन देके पीते हैं ना, कि आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रांग, आई लव यू, आई थैंक यू। पानी, हम मंदिरों में तीर्थ मिलता है, लोग वेट करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें मंत्रा का गुडनेस है, चैंटिंग, इसके लिए वो अमृत बन जाता है, तीर्थ बोलते हैं। इतना 2 बूंद के लिए हम लोग 1 घंटा लाइन में खड़े रहते हैं, है ना। तो पानी को मेमोरी है, ये मसरू एमोटो का एक्सपेरिमेंट है, जिन्होंने पानी को अलग अलग चीजें, मतलब जो बोले अफर्मेशंस, तो वैसा हुआ। और ये हमारे बैच फ्लावर रेमेडीज ऐसे दिखते हैं, 75% जो हमारी बॉडी में 75% वाटर है, सेम इसमें भी 75% वाटर है। ठीक है, सनलाइट और बॉइलिंग मेथड से बनता है। ये हमारे 38 फ्लावर्स जो उन्होंने, इनके सब अलग अलग नाम हैं, ये 38 फ्लावर्स के, कौन से इमोशन पे कौन सा होता है, हम ये कोर्स में ना बहुत डिटेल में एक एक फ्लावर के बारे में बताया जाता है, कौन सा इमोशन कैसे काम करता है, क्या आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आपकी हेल्थ इशू क्यों हो रहा है, आपको कौन सा ऐसा रेमेडी है जो आपकी हेल्थ के लिए काम करेगा, आपको डर है, स्पेशली जैसे बच्चे हैं, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, फियर है, या गुस्सा बहुत आता है, या बहुत सारी चीजें, मतलब आपको बहुत ऐसे लगता है, किसी किसी को ओसीडी हो जाता है, घड़ी घड़ी चादर झटकेंगे, घड़ी घड़ी वॉशरूम जाके धोएंगे, ऐसे घड़ी घड़ी हाथ धोएंगे, ये सबको कोविड में हुआ था, घड़ी घड़ी साबुन से हाथ धोएंगे, ये सारी चीजें ना इजीली बहुत हमारी हील हो जाती हैं पैच फ्लावर से। और इसका फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, हर्ट्स में होता है, बिकॉज ये वाइब्रेशनल फ्लावर्स हैं। और इन्होंने कैसे ना इसको 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया, कि हमारे इमोशंस के ना कौन से इमोशंस होते हैं जो जनरल हमको पता है, वो 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया उसको। जैसे फियर, तो फियर के अलग अलग रेमेडीज उन्होंने बताए, कि फियर किस टाइप का फियर है, आपका नोन फियर है, अननोन फियर है, हाँ, और मतलब गुस्से की वजह से आ रहा है, अपने नियर डियर वंस की चिंता की वजह से फियर, चिंता Yes, हो रही है, वो डर है क्या हो जाएगा, मेरा बेटा बाइक लेके गया है कहीं लंबी जगह पर, क्या हो जाएगा। तो ये सारे फियर ग्रुप के हैं। दूसरा होता है, मतलब किसी को अनसर्टेनिटी, पता ही नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, बस अनसर्टन रहते हैं, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा कुछ, ये अनसर्टेनिटी। थर्ड ग्रुप उन्होंने डिवाइड किया इनसफिशिएंट, मतलब जो प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, पास्ट के बारे में सोचे हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा है मन, कैसा है हमारा मंकी माइंड है, पल पल में चेंज होते रहता है, जैसे चंद्रमा रोज घटता है बढ़ता है,
वैसे हमारा मन का कारक चंद्रमा ही है, सेम हमारा माइंड भी ऐसा ही है। तो इनसफिशिएंट प्रेजेंट में नहीं रहते। कौन से इमोशन की वजह से? वो सारी मतलब पूरा एक 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 फ्लावर किस किस चीज के लिए यूज होता है। फिर लोनलीनेस, तो लोनलीनेस मतलब अकेलापन। बहुत लोग होते हैं ना, अकेला बैठ नहीं सकते हैं, अकेला सो नहीं सकते हैं। और ये सारी लोनलीनेस की है उसकी। क्यों आया वो इमोशन, कैसे आया, बचपन से आया, कैसे आया, पूरी चीजें मतलब एक्सप्लेन करते हैं क्लास में पूरा अच्छे से। एक एक मतलब ग्रुप कवर होता है। और ओवर सेंसिटिविटी मतलब आप कैसे रिएक्ट करते हो कोई इमोशन को, इन्फ्लुएंस और आइडियाज, बाहर की चीजों से कैसे इन्फ्लुएंस होते हो, वो सारा। दूसरा आता है डिप्रेशन का, डिस्पेयर, होपलेसनेस, कि आपने उम्मीद ही छोड़ चुकी है, मेरे भाई लाइफ ऐसी है, ऐसे ही चलने वाली है, कुछ ऐसा। मतलब क्या, मतलब क्या बोलते हैं, सुलह ऐसे समझौता कर लिया है गमों से, ऐसे ही होती है लाइफ। तो ऐसा नहीं होता है हमारी वो लाइफ, कैसे चेंज कर सकते हैं हम? वो डिस्पेयर, होपलेसनेस, उसको हील करने में हेल्प करता है। ओवर केयर ऑफ अदर्स, मतलब आपके आसपास जो है, या बहुत लोगों को होती है ना, हर चीज की चिंता होती है, आसपास वालों की, घर वालों की, या हर चीज सेट होनी चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए, मैं हर चीज में एक्सेल करूं, ये सारी चीजों को हील करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक जो मैंने बताया, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ओके, श्वेता मैम क्लियर हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? श्वेता मैम, यस मैम, समझ में आ रहा है। हाँ, तो कैसे काम करता है? ओके, ठीक है, कुछ डाउट नहीं है ना यहाँ तक? कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं मैम। ओके, ठीक। नहीं नहीं। कल्पना मैम, आप यूज कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, मैं यूज कर रही ना, मेरे को तो बहुत फर्क है। अच्छा, फर्क है। बहुत अच्छा लग रहा है आप तो पूरा। अकेला सोते नहीं थे, है ना? अच्छा लग हाँ, रहा है बहुत ना? ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपका फेस में ही बहुत फर्क लग रहा है, बहुत है फर्क ना। लग रहा है। हाँ। सच्ची ऐसे, में मैंने तो मतलब लिया 2 महीने, थोड़ा है वो, और लिया नहीं। मैं बोली थोड़ा देखते गैप रख के भी, तो मतलब अच्छा फील हो रहा है। हाँ, अच्छा ही फील होता है वो तो। वो आपकी बॉडी हाँ को जितना जरूरत है उतना ही लेगा, उसके बाद आप भूल भी जाओगे लेना। हाँ, होता है। सच्ची में ना, नहीं याद ही नहीं आ रहा है कि वापिस अभी वो खत्म करना है या लेना। तो मैं वही पूछने वाली थी आपको कि ले या रहने दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं, ना ऐसे। प्रॉब्लम नहीं है तो छोड़ देने का। बट जब भी वापस हाँ होता है वो, उसका तो कुछ एक्सपायरी डेट है नहीं, कुछ नहीं है। हाँ कितने हाँ दिन भी रखो। वेरी गुड। हाँ, बराबर। नहीं, इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ रही है वो, जैसे आपने बोला वो आपने पूरे क्लास देख लिए सब? 2 महीने तक कंपल्सरी लिया। पूरा क्लास, पूरा पूरा लाइफ ही चेंज हो गया है। क्लास देख लिया पूरा अच्छे से? हाँ, नहीं देख रही मैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी आ रहा ना, वो भाई का भी दीदी का भी, जैसा बीच में थोड़ा जैसा टाइम मिलता उतना, तो मैं बोली अभी वापस शुरू होगा तो फिर कंटिन्यू कर लूंगी। हाँ, कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और नहीं हमारा बहुत ऐसा अच्छा है लगा। कि क्लास आता है ना, तो आप हम्म, जितनी बार भी न्यू बैच आएगा, आप इजीली आके वापस से ज्वाइन कर सकते हो, आपका रिवीजन भी हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ना, हम्म। और बहुत बराबर। सिंपल आज वे में थोड़ा एक्सप्लेन लेट हो होता है। गया, अभी देखा मैंने, गाँव गई थी अभी आई। हम्म। हाँ, थोड़ा लेट हो गया, 9:30 बज गए मुझे ज्वाइंट होने में, नहीं, पहले वो का। 5-10 मिनट हम लोग नहीं ने पर ऐसे। अच्छा है दीदी आपका, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने तो सबको बोला कि बहुत बढ़िया है ये, पक्का करो। मैं बोली सब जन, बहुत असर होता है, क्योंकि मुझे अभी, मैं खुद अकेली भी रहती हूँ तो भी मुझे कुछ ऐसा फील नहीं होता है कि अकेले कैसे रहो, कैसे रहो, अभी ये कैसे करो, वो कैसे करो, कुछ भी नहीं, मस्त खाना पीना ऐश मस्त एकदम। अभी आपको तो पता ही है सब चीजें, आपको तो पता ही थी मैंने हम्म, कैसा था नेचर खुद और के क्या लिए, था। खुद के लिए जियो बस। इतना प्यारा जन्म मिला है हम लोगों को, ऊपर वाले ने, है ना? बस मानस जन्म दुर्लभम बोलते थे ना। बस
हाँ, हाँ, तो उसको अच्छे से जीना है। हम धरती पे बोझ नहीं छोड़ना है अपने सच्ची इमोशन। में आपको ही धन्यवाद। बराबर। मैं इसलिए तो मैं आपको ही धन्यवाद देती हूँ बहुत सारा। मुझे धन्यवाद नहीं, मुझे नहीं। धन्यवाद। यूनिवर्स क्योंकि यूनिवर्स यूनिवर्स। वो आप मेरे अभी श्वेता मैम भगवान एक के महीने से रूप से, एक और महीने वो से मेरा देखो सब उनका पूरा लाइफ ही चेंज कर प्रयोग ही दिया। नहीं आ रहे हैं। एक महीने से उनको बेचारे वेटिंग है। मतलब मुझे वहां से गाइडेंस नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, है कोई ना। बात नहीं मैम, हाँ मैं नहीं, वेट कर रही हूँ। मतलब जब होता है ना गाइडेंस कभी आएगा कभी। बेस्ट आएगा। हम्म, हाँ, जब गाइडेंस आएगा बेस्ट आएगा मैम। हाँ करेक्ट करेक्ट, होता है ऐसे, कभी कभी हो जाता है। नो प्रॉब्लम मैम। थैंक यू सो मच। या No, no, no. Thank you, ma'am. You're teaching us such wonderful things, such amazing things I'm learning from you. थैंक तो यू। अपने यहाँ पे पेशेंस भी सीख रही। दिस इज टीचिंग मी हाउ टू कीप पेशेंस ऑल्सो। हाँ वो है हमारे पास, इसमें इम्पेटियंस भी है मेडिसिन। सो इम्पेटियंस इज अबाउट इफ यू हैव इम्पेशंस। नो, बट आई यू नो हैव। ऊपर वाले ने ना वैसे भी लेडीज उनको दिया है, सब्र बहुत दिया है। इसके लिए तो वो बहुत। इतना, देखो मतलब बच्चा पैदा करती है, इतना सब्र है ना उनको। सब चीजें अपने अंदर समा के रखती है, जैसे धरती माता रखती है। हम भी तो माता ही है ना। जैसे मतलब सबके लिए काम ही करेंगे, कितना भी, जैसे हमारी पृथ्वी कर रही है वैसे कोई भी माँ कर रही है सब। भले आप गौ माता बोलो, कोई भी माता बोलो, है ना। वेरी ट्रू, गॉडेस, वेरी मदर ट्रू। गॉडेस भी वही कर रही है। जिनके आगे भी माता नाम आता है ना, तो उनका काम ही है सेवा करना, है सेवा कि नहीं। करना, सब्र करना। हम्म, सेवा करना, सब्र करना। हाँ, हमेशा निस्वार्थ सेवा। एकदम मैम। हर मदर, आप हमारी सेल्फ मदर होने दो, हमारी गौ माता होने दो, हमारी पृथ्वी माता होने दो, हमारी देश माता, देश की माता मतलब मदरलैंड हमारी, वो भी तो सेवा ही कर रही है ना हमारी। और जो हमारी वेदों की माता है, वेद माता हमको नॉलेज दे रही है। तो सब माताएं वही कर रही हैं, सेल्फलेस सर्विस, है ना। तो ये इतनी ब्यूटीफुल, मतलब ये देखो ना, इन्होंने पहले 12 हीलर्स, ये हमारा पर्सनालिटी टाइप है कि हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है। ये एक्चुअली हमारे जो हॉरोस्कोप में 12 घर है ना, हमारे 12 हाउस, वो दर्शाते हैं 12 हाउसेस। ये इस तरह से होते हैं हमारे बैच फ्लावर। ठीक है। और इसमें हम ये भी कवर करते हैं मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आप है ना सेल्फ ऑडिट करोगे कि आज मैं कौन से इमोशन में थी। रात को बैठेंगे ना, तो खुद को देखना है आज मैं कौन से, क्या मुझे डर लगा था, क्या मुझे गुस्सा आया था, क्या मैंने खुद को ब्लेम किया था, एंजाइटी आई थी, किसी के ऊपर जेलसी हुआ था, फियर हुआ था, ये सारे जो लोअर, वो सब करोगी। जैसे जैसे हम रिकवर होना चालू करते हैं ना, हम येलो लाइन तक आ जाते हैं। येलो लाइन जो ऊपर वाली दिख रही है आपको, करेज, मतलब फियर को फेस करने का करेज। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके, फियर का, ग्रीफ का, गिल्ट का, वो सब धीरे धीरे आप छोड़ते जाओगे, एक्सेप्टेंस में आओगे, विलिंगनेस में आओगे, होपफुल बनोगे। इसमें जो इमोशंस बताए हैं उसका ऑपोजिट होना चालू होगा। फॉरगिवनेस में आ जाओगे, धीरे धीरे सरेंडर मोड में आ जाओ, तो आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। तो स्लोली स्लोली ऑटोमेटिक हीलिंग होना चालू हो जाती है ना। तो इस तरह से ये इतना ब्यूटीफुल काम करता है मैप ऑफ कॉन्शियस। ये क्या है, हमारे चक्रास ही दिखा रहे हैं, कलर्स आप देख रहे हो। लोअर चक्रा हमारा रेड, ऑरेंज, येलो। ऊपर वाले चक्रा क्या करता है, हम लोग को इजीली हम हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं। तो ये जो लोअर इमोशंस हैं वो हमारे लोअर चक्रास डिस्टर्ब होते हैं। इसके लिए अपर चक्रास हम स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाते हैं, डर में रह जाते हैं, ब्लेम में, गिल्ट में, शेम में, जेलसी, एनवी, हेट्रेड,
ये सब क्या है? ये सारे इमोशंस हमारे लिए हैं ही नहीं। हमको हायर गियर में रहना है। ये डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस ने दिया है कि आप खुद को टटोलो सुबह से। मैंने गुस्सा किया, क्या मैंने ऐसी गिल्ट में आया, एंगर में आया, हेट में आया, रिग्रेट, अरे मेरे साथ ही सब भगवान क्यों गलत करता है, मैं ही मिला क्या? सब मेरे साथ गलत होता है, पूरी दुनिया मेरे साथ गलत करती है, और सबको जिम्मेदार ठहरा देते हैं, इसने मुझे, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुआ। ऐसे कैसे बोल देते हैं ना, हस्बैंड बोल देते हैं, या हम ही कभी बाय चांस भाई आती है बोलते हैं, आप मतलब अपनी वाइफ को सपोज बोल देता है हस्बैंड, तेरी शक्ल देख के क्या इसके लिए मेरा काम नहीं हुआ। दैट इज नॉट द रीजन ना, ऐसा तो कितना गलत हम ब्लेम कर देते हैं। अवेयरनेस नहीं है। ये चक्रास पे कैसे काम करते हैं, अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग चक्रास पे, पूरा चक्रास के लिए भी बताया जाता है। आपके जो बैकबोन में प्रॉब्लम्स आते हैं सबको, वो क्यों आए, कौन सा इमोशन है, कौन सा फ्लावर है, स्पाइन में प्रॉब्लम आता है, सर्वाइकल पेन आता है, लोअर बैक में पेन आता है, हम लोग उसके हिसाब से भी करते हैं, हॉरोस्कोप के हिसाब से भी करते हैं। ये हमारे अलग अलग इमोशंस के लिए। फिर उन्होंने एक 39 रेमेडी दी है, जो रेस्क्यू रेमेडी है, जो मतलब आपको रेस्क्यू करने में हेल्प करती। कोई भी इमरजेंसी आई तो आप एक ये रेमेडी लेके अपना पूरा आप इसको लाइफ रेमेडी भी बोल सकते हो, इतना ब्यूटीफुली काम करती है। एनी इमरजेंसी, कोमा के पेशेंट भी वापस आ सकते हैं, ऐसा है, ठीक हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका होलोग्राफिक इमेज दिखाया है, जैसे कैलेडोस्कोप में। ये क्या है उसकी, जैसे हमने वाटर का देखा, वाटर में मॉलिक्यूल कैसा है, अगर आप उसको अच्छा अच्छा बोलते हो तो ये उसका दिखाया है कि कितना ब्यूटीफुली ये इसके वाइब्रेशंस कैसे हैं। इसके लिए वो उसका इतना अच्छा उसका ये दिया है व्यू, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर ऐसा आया है। और ये हमारे अंदर कौन से अच्छे इमोशंस लेके आता है, बैच फ्लावर रेमेडीज, जो हमारे अपर लेवल के जो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में थे, ये 7 जो ग्रुप्स हमने देखे थे, और ये अलग अलग हर्ब्स हैं। ये न्यू एज क्वांटम मेडिसिन है, सिंपल है, वाइब्रेशनल इंसेंस विदाउट केमिकल, प्योर सेफ, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। आपको इसकी आदत नहीं लग जाती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई कोई पैथी में इंटरफेयर नहीं करती। आप एलोपैथी ले रहे हो, होम्योपैथी ले रहे हो, आयुर्वेदिक ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री जाती है। ठीक है, आप पेट्स को दे सकते हो, आप प्लांट्स को दे सकते हो अपने, बहुत इजीली काम करता है। निकिता कौन है मैम? कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? हेलो मैम, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। ओके, आपको कैसे मिला ये लिंक? मैम आपने ही भेजा था, मैं आपसे वो नक्षत्र सोप में आपने ओके मुझे सिखाया था वो। ओके ओके, सो यू आर यूजिंग ना? हाँ मैम। ओके, वेरी गुड। या, सो आई टेक बैच फ्लावर थेरेपी क्लास भी लेती हूँ मैं, और 7 बैचेस हो चुके हैं मेरी। ओके, और मैं इसमें लेवल 2 और 3 भी सिखाती हूँ। मतलब अभी ये जो ये क्लास आएगा ना, ये 10 to 12 डेज में हम 2 मेथड्स, मतलब सेकेंड लेवल भी देखते हैं इसका, खाली बेसिक बैच फ्लावर नहीं है इसमें। दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे रिसर्च किया, उसका अप्रोच डिफरेंट लिया है, ट्रैक मेथड, तो वो एडवांस लेवल में वो भी मतलब कवर होता है। जनरली आप कहीं भी देखेंगे ना, वो 38 फ्लावर्स पढ़ा के छोड़ देते हैं कोर्स,
हो जाता है फिनिश। कल्पना मैम आपने किया है, नंदिनी मैम, जिन्होंने भी पहले किया है सबको पता है, उतना ही सिखा के छोड़ देते हैं। ये फ्लावर ऐसा, वो फ्लावर ऐसा, उसको यूज कैसे करना है, उसको सेकेंड लेवल तक कैसे लेके जाना है ट्रीटमेंट के लिए, वो उसका दूसरे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर डीटमर क्रामर, जिन्होंने उस पर रिसर्च किया है। तो उसका पूरा स्टडी मतलब डिकोड करवाती हूँ मैं पूरा, मतलब आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप एज अ थेरेपिस्ट आप कैसे यूज करोगे, वो इमोशन को कैसे हील करोगे, आ, कैसे बोलेंगे यू टर्न लेकर जाना है हमको, वो इमोशन डीप क्यों गया, एक एक अनियन पील जैसा एक एक इमोशन हील होता है ऐसे। और बच्चों में तो ये बहुत ब्यूटीफुली, यूथ में जिनको भी जो भी प्रॉब्लम्स है, फियर है, एंगर है, इतना ब्यूटीफुली काम करता है। कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक सिंपल सिंपल डे टू डे लाइफ के लिए आपके बहुत हेल्पफुल है। तो मैं बोलूंगी हर घर में एक बैच फ्लावर थेरेपिस्ट होना बहुत जरूरी है ना। तो कैसा लगा आपको ये आज का? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रेकी जैसे ही है, मतलब रेकी हर घर में चाहिए, वैसा बैच फ्लावर भी हर घर में चाहिए, जी बिल्कुल, क्योंकि वो क्योंकि बहुत हम जरूरी हो गया है अभी। हम्म, इतनी दवाइयां यूज करते ना, इतने साइड इफेक्ट हो रहे हैं उससे। तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज्यादा कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। और हम्म, इतनी शांति मिलती है उसमें, बहुत शांति है, और बहुत चेंज हो जाता है पूरा नेचर अपना, ये चेंज हो जाता है। हम्म, इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि बहुत जरूरी है सीखना। हर हाँ। घर में एक रहेगा तो बीमारियां भी भागेगी, और लोग सब दवाई के पीछे भागेंगे नहीं। मेन तो है क्या नहीं? इमोशनल, हाँ, डिप्रेशन, ये सब चीजें ना उसमें बहुत ब्यूटीफुली काम करता है डे टू डे लाइफ में हमारे जितने भी। बराबर है। आजकल के बच्चों को डिप्रेशन भी बहुत आता है। सुसाइडल टेंडेंसी, बहुत कुछ, थोड़े थोड़े आपको पीयर प्रेशर है। और जैसे अभी सोशल मीडिया पे बहुत लोग जो एक्टिव नहीं है वो लो फील करते हैं, ऐसे सब बहुत सारी चीजों में हमारी डे टू डे लाइफ में, एवरी डे लाइफ के लिए बहुत यूजफुल है ये। बराबर। इसका बहुत ज्यादा प्रसार होना ही चाहिए, एक्चुअली बहुत होना चाहिए, रेकी जैसे ही होना चाहिए, मतलब उनको समझ में आवे दुनिया में हाँ, कि ये बैच फ्लावर ये क्या भी है। नेचुरल हीलिंग मॉडलिटी है ना, नेचुरल है नेचुरल, ना ये भी। सच्ची हाँ। में। और फूल तो देखो, फूल हम हर पूजा में, हर सेलिब्रेशन में, आप हर यूज जगह करते हैं। फूलों को यूज करते हैं, तो फूलों को कितना महत्व है। और बहुत जल्द मैं इंडियन फ्लावर्स का भी एक लेके आने वाली वर्कशॉप, इंडियन हमारे जो फ्लावर्स हैं वो हाँ, कैसे यूज अच्छा। कर सकते हो, आपके आसपास के फ्लावर्स आप कैसे यूज कर सकते हो, वो भी बहुत ब्यूटीफुली काम करते हैं। चलिए, ठीक है। और किसी को कुछ शेयर करना है? रेशमा मैम? No, ma'am. I mean, I'm all new to this one, so I'm just But listening. you got the understanding about what I have told. Yeah. Hmm? Yeah. Yes, ma'am. हाँ। मुझे तो बोलना भी आता नहीं था। बोलना भी बहुत डर डर के बोलती थी मैं, कि मैं बोलती अकेले में बोलूंगी मैम आपसे। यस। तभी ये सब चीजें चले गई, अभी डायरेक्ट बोलती हूँ, मुझे कुछ कभी लगता ही नहीं ऐसे कि कैसे बोलना, क्या करना। और 2 ही महीने लिया, 1 महीने की दवा शायद होगी उसमें, वैसी पड़ी है, जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इसलिए बोले आपको कि वापस आ रहा होगा तो मैं ज्वाइंट हो जाऊंगी, अभी अच्छे से हाँ। वापस कर लूंगी। जी जी जी। बहुत अच्छा, बढ़िया। थैंक दीदी यू। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद थैंक आपको। यू, थैंक यू। या मिकिता मैम? हेलो। यस मैम, मैंने तो, मेरे लिए तो ये नया है। अगर आप फिर से इसका रखेंगे तो मैं पूरा पहले से सुनूंगी, बट नक्षत्रा वाला तो आई मैंने विल किया है शेयर वो ऑन तो। यूट्यूब, नो दिस आई विल शेयर ऑन ओह अच्छा यूट्यूब अच्छा। तो रिकॉर्डिंग। यूट्यूब से ही सुन लेंगे, हाँ। तो उसका और हाँ, थोड़ा और मैं बहुत नॉलेज जल्दी मिल ये जाएगा। कोर्स लेके आ रही हूँ मैं, मतलब नेक्स्ट कमिंग मंथ में। और बहुत डीप स्टडी है इसका, और बहुत यूजफुल भी है, मतलब डे टू डे आप एटलीस्ट अपने फैमिली मेंबर्स को इजीली हील कर सकते हो। ये हमारे जनरेशन्स, जो 7 जनरेशन्स, उनको भी, कोई भी सपोज आपको डिजीज है, कोई डायबिटीज है, बीपी है,
या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कैंसर है, वो हील हो गया तो आपके कमिंग जनरेशन तो ऑटोमेटिकली हील हो गया ना। और जो बैक आपका ट्रॉमा है पहले का, अगर उसको हील कर दिया आपने, पहले पास्ट लाइफ से क्या लेके आए हो, इट इज लाइक अ जनरेशन का पूरा हीलिंग होता है, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग आती हम्म। है इसमें। आजकल तो घर घर में ये बीपी डायबिटिक्स का तो है ही। हाँ, क्यों होता है? वो भी इमोशंस हैं हम्म। और कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस है, एंजाइटी, इमोशंस, बस वो पकड़ के रखते हैं, इतना सारा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी, फियर है, हर एक को अपना सर्वाइवल का। तो हम लो कॉन्शियसनेस में जो रहते हैं, धीरे धीरे यू स्टार्ट, मतलब हम कॉन्शियसनेस में रहना स्टार्ट करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, वो डिस्क्रिमिनेशन लेके आते हैं ये इतना ब्यूटिफुली। दैट इज ऑल अबाउट एक्चुअली फ्लावर कॉन्शियसनेस। वी हमारा कैसे ना, वो जो नेचर की फ्रीक्वेंसी से मैच होते हैं बाद में, तो वो सारा ना लेट गो कर देते हैं। हमारे साथ जो पास्ट में हो गया ना, पकड़ के नहीं रखते, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। ठीक है, चल, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सो पेशेंट। थैंक यू। Ah, someone has joined now. Wait, now I can't. She has to come. She's my student. धन्यवाद धन्यवाद। रेशमा मैम कुछ बोल रहे थे। करना दीदी वो मुझे। रेशमा मैम कुछ बोल रहे थे। No, ma'am. रितु मैम, इतना लेट क्या हुआ? मैम डिनर टाइम। डिनर टाइम, ओके। बट थैंक यू, आपके बेस्ट कोर्स कोर्स करने के बाद मेरा सब क्लियर, मिस कंफ्यूजन सब क्लियर हो रहा है। वेरी गुड, थैंक यू। मैं अंजू दिन रात मैम, दिन रात ग्रेटिट्यूड करती हूँ। नहीं, वो तो डिवाइन का ग्रेटिट्यूड है, जिन्होंने भाई ये हम लोगों को, मैं भी डिवाइन का ग्रेटिट्यूड करती हूँ, और डॉक्टर बैच जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल मॉडलिटी हमारे लिए लेके आए, इतना ब्यूटीफुल बुके मिला, है ना। यस यस बिल्कुल। हम्म, चलिए अंजू मैम। अच्छा है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आप पहले भी ज्वाइन हुए हैं एक बार, है ना। हाँ। आज तो मैं भूल गई थी, आपका लिंक तो मैंने दो जन को और को दिया था, ओके। हो सकता है वो अभी ज्वाइन। हाँ हाँ, बट हमने काफी चीजें कवर कर ली। अराउंड 40 मिनट्स हो गए ना, 40-45 मिनट्स। काफी मैंने डिटेल्स बता दी है इसके। तो मैं यूट्यूब पे शेयर कर दूंगी, ग्रुप पे डाल दूंगी ये वाला वीडियो। अच्छा, ठीक है। ठीक है ओके। जी। हाँ, थैंक हाँ, यू। ये आप इसका, इस पे ऑडियो आपका कुछ बना के, वीडियो बना के इस पे भी डालेंगे क्या? वीडियो भेजूंगी ना अभी, ये जो मैंने अभी बताया पूरा वीडियो डालूंगी यूट्यूब पे, अच्छा ग्रुप पे डालूंगी अभी, मेरे अच्छा कम्युनिटी में डाल दूंगी। अच्छा। ठीक हम्म, है जी। आप ठीक है फॉरवर्ड कर जी। सकते हो किसी को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ठीक है जी। ये थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके। रितु। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण। जय श्री आपका थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी। चलो। दीदी वो मुझे